गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। तो आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट कैटेगरी इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which of the following method is used to convert ketone into hydrocarbon? So it will be by reduction, and the reduction is Wolff-Kishner reduction. It's treated with hydrazine and alcoholic KOH. Catalyst used in Rosenmann's reduction is palladium supported over barium sulfate. Formaldehyde reacts with ammonia to give hexamethylene tetramine. And which type of isomerism is used by pentanol? It is all the three: chain isomerism, position isomerism, and functional isomerism. So answer is option D, all of these. The compound X on treatment with acidified potassium dichromate gives compound Y. So it's oxidized. So the compound Y reacts with iodine and sodium carbonate to form triiodomethane. That means Y should be a methyl ketone. And methyl ketone will be formed on oxidation of an alcohol which has methyl group attached to the carbon bearing OH bond. So option D is the correct answer. This is 2-propanol. Which compound undergoes iodoform reaction? So out of the three, acetaldehyde, ethanol, undergoes iodoform reaction. Which of the following gives iodoform on heating with a solution of iodine containing sodium carbonate? So it is acetone. Which of the following compounds will give a yellow precipitate with iodine and alkali? So the answer is one having methyl group attached to the ketonic carbon. So it's acetophenone, option B. Benzyl alcohol is obtained from benzaldehyde. Benzaldehyde undergoes Cannizzarose reaction. It will form two products. One is sodium benzoate and the other one is benzyl alcohol. A compound that gives positive iodoform test will be pentane 2-one. Formaldehyde, when treated with concentrated potassium hydroxide, will give methanol and potassium formate. Which of the following does not give brick red precipitates with Fehling solution? So it's a ketone. So option D, acetone, is the answer. Which of the following reactants in presence of aluminium chloride gives acetophenone? So acetophenone will be formed when an acetyl group is attached to a benzene. So the correct answer will be benzene and acetyl chloride. Carboxylic acids. The ease of esterification of following acids: formic acid, acetic acid, and propanoic acid with methanol is. So formic acid should be the most reactive, then acetic acid, and then propanoic. So option A, 3 is less reactive than 2 is less reactive than 1 should be the correct answer. Which has the maximum acidic strength? So nitro group is electron withdrawing group, and at ortho position it increases the acidic character. So ortho nitro benzoic acid is the correct answer. The reaction of HCOOH with concentrated sulfuric acid will give carbon monoxide. Formic acid can reduce Tollens reagent because it has a CHO group in it. Then it can reduce mercury chloride. It can also reduce potassium permanganate. So answer is option D, all. Which acid is the strongest? So trichloroacetic acid is the strongest. Option A is the correct answer. Second category is write the structure of, for example, 2-methyl butanol. तो वर्ड रूट 4 की है और
फंक्शनल ग्रुप AL मीन्स एल्डिहाइड है, तो हम 1 2 3 4 कार्बन्स विद फर्स्ट कार्बन CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और सेकेंड पे मीथाइल ग्रुप अटैच्ड है और बाकी की वैलेंसीज को हाइड्रोजन से कंप्लीट किया. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर. तो इस तरह से कोई नेम देकर स्ट्रक्चर लिखने को बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर देख के IUPAC नेम लिखने को पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में जो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं OH एंड डबल बॉन्ड O, इसमें से ये स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप है तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया. नंबरिंग यहाँ से की 1 2 3 4 5, 4 पे हाइड्रोक्सी है सो नेम विल बी 4 हाइड्रोक्सी. 5 के लिए पेंट एन और 2 पे डबल बॉन्ड O है तो ओन सफिक्स लग गया तो नाम है 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन. इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, क्योंकि एल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में नहीं होती है. इसमें डाइपोलर इंट्रैक्शन होती है, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन्स की बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं. एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव दैन एसीटोन टुवर्ड्स रिएक्शन विद HCN. अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें साइनाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है. अब कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. तो 2 एल्काइल ग्रुप्स जो है एक तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करते हैं, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करते हैं, और दूसरा ये कि हिंड्रेंस कॉज करते हैं उसकी अप्रोच के लिए, तो कीटोन्स की एक्टिविटी कम होती है. जबकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक pH ऑफ रिएक्शन शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिल कंपाउंड्स, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करने की बजाय जो एसिडिक मीडियम है वो उसके साथ बेसिक अमोनिया रिएक्ट कर जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड रह जाएगा. जबकि बेसिक कंपाउंड में जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसका कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करेगा, इसलिए हमें pH को बेसिक रखना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. There are 2 NH2 groups in semi-carbazone. However, only one is involved in the formation of semi-carbazone. तो semi-carbazone में ये जो है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन CONH2 से कंबाइंड है. ये वाला कंपाउंड इसके हाइड्रोजन्स जो हैं एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं. अब आउट ऑफ द 3 नाइट्रोजन एटम्स तीनों पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इसके साथ वाला ये नाइट्रोजन एटम नंबर 1 है और नंबर 2 है, रेजोनेंस की वजह से इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, इसलिए अवेलेबल नहीं होते कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के लिए. सिर्फ ये वाला नंबर 3, ये वाला अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन जो है वो सेमी कार्बोजोन बनाने में इन्वॉल्व होता है. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो अ नंबर ऑफ एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि इसमें जो पोलर कार्बोनिल ग्रुप है उसके डबल बॉन्ड में जो है मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं आके, इसलिए ये एडिशन रिएक्शंस अंडरगो करता है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट गिव रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि जो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप के साथ में ही OH ग्रुप भी है, और कार्बोनिल ग्रुप के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस की वजह से कॉन्जुगेशन में एंगेज हो जाते हैं और इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस को नहीं देते हैं. देन क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिटिक एसिड, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से अलोंग द चेन इलेक्ट्रॉन्स इधर को पुश हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है इट गेट्स मोर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स एंड इट फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ प्रोटॉन. ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा और ज़्यादा होता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें नहीं है तो ये इसके कंपैरेटिवली वीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन फिनोल. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब प्रोटॉन देता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है जिसके दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं इक्वलेंट होते हैं रेजोनेंस की वजह से, जबकि फिनोल में जो 2 प्रोटॉन के देने के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इक्वलेंट
नहीं होते हैं, तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, जबकि फिनोल में एक ही है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट मेटा पोजिशन। तो क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड है उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से जो ये कार्बन एटम्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कार्बन एटम्स हैं इन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को माइग्रेट कर जाते हैं। सिर्फ मेटा पोजीशन ही एक रह जाती है जहाँ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक देयर, इसलिए ये मेटा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Then ethanoic acid is a weaker acid than benzoic acid because ethanoic acid में electron releasing alkyl group methyl group होता है, तो जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई कर देता है, प्रोटॉन की रिलीज डिफिकल्ट होती है। जबकि बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ फिनाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाता है, जिसकी वजह से H के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेता है और प्रोटॉन की रिलीज को फैसिलिटेट करता है, इसलिए बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो ये कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन? तो टॉलेंस रिएजेंट से जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजाल्डिहाइड टॉलेजन के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर मिरर बनाता है, जबकि एसिटोफिनोन नहीं बनाता। वी कैन डिस्टिंग्विश। सिमिलरली बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड को हम सोडियम बाइकार्बोनेट से टेस्ट कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के एफोवेसेंस बनाता है, जबकि बेंजाल्डिहाइड नहीं बनाता है। प्रोपेनल और प्रोपेनोन में प्रोपेनल टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर मिरर देगा, प्रोपेनोन नहीं देगा। इथेनल और प्रोपेनल में भी इथेनल जो है उसमें CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, तो वो आइडोफॉर्म बना सकता है। प्रोपेनल में CH2 होता है इसलिए अल्फा पोजीशन पे, इसलिए वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। देन बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन में ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन नहीं देगा। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू इथेनॉल? तो इथाइन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं 333 केल्विन, तो एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, इथेनॉल इज फॉर्म्ड। इथेनॉल को पहले ऑक्सीडाइज करेंगे इनटू एसिड और फिर उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम एसीटेट बनाएंगे, जिसकी डिस्टिलेशन करने पे एसीटोन मिल जाता है। फिनोल से बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे सो दैट बेंजीन फॉर्म हो। फिर कैटोमैन कोच रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड एज कैटलिस्ट यूज करके हम बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो जैसे एसिटाल्डिहाइड एसीटोन और मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन है, तो इसमें जो सबसे कम छोटे ग्रुप्स एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये सबसे कम रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, उसके बाद एसीटोन की, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एसिटाल्डिहाइड। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? तो टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये एल्डिहाइड्स के साथ टेस्ट देती है, जबकि कीटोन्स के साथ नहीं देती है, और एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करके ये सिल्वर मिरर बनाती है, और इस तरह से एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो ज़रूर ही आने हैं, तो लेट अस डू सम नेम रिएक्शंस। फर्स्ट इज स्टीफन रिएक्शन। तो साइनाइड्स को जब हम टिन क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस कराते हैं तो पहले एल्डिमीन बनती है, जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड बनाती है। दिस इज स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में कोई भी एल्काइल बेंजीन जब क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट करवाते हैं तो 2 हाइड्रोजन्स की जगह ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, और ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल फॉर्म एल्डिहाइड। इन वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन हम कार्बोनिल ग्रुप जो है
ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसको हाइड्रोजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजीन के साथ ये एल्डिमीन बनाती है और KOH और एथिलीन ग्लाइकोल के साथ फिर ये ऑक्सीजन इधर और हाइड्रोजन इधर, तो रिस्पेक्टिव CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन बनता है। कैनिजरोज रिएक्शन में वो एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उनको जब हम कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी। तो ऑन रिडक्शन मिथेनॉल और ऑन ऑक्सीडेशन सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड बनता है। अगर हम किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप एसिटाइल ग्रुप को अमीन्स में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उस रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इन एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और ऐड हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है जिसको एल्डोल कहा जाता है। ऑन हीटिंग इसमें से अल्फा बीटा कार्बन से वाटर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और इस तरह से इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में जिंक अमेल्गम की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करने पर CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। देन रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन में हम एसिटाइल क्लोराइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करते हैं, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट एक्ट करता है एज रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग xylene, तो CH3COCl CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज रोजनमन्स रिडक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करके एस्टर बनाया जाता है। और हेल-वोलार-ज़ेलिंस्की रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हम हेलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस रिएक्ट करवाएंगे तो अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लग जाएगा। इसको HVZ या हेल-वोलार-ज़ेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं। सो दीज आर सम important reactions of aldehydes, ketones and carboxylic acids. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.